Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture we will discuss residue at poles and will discuss some examples. हमने देखा whenever a function f fails to be analytic at some point z naught then we can think about Lorentz series expansion. And furthermore, whenever f has an isolated singular point then we can think of the residues. और अगर हमारे पास लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है देन जस्ट आइडेंटिफाइंग द कोफिशिएंट b1 we can directly write the residue of the function f at the point z equal to z naught. अब अगर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एक पोल बनता है तो उस केस में इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एन अल्टरनेटिव मेथड टू आइडेंटिफाई रेजिड्यू. हमारे पास एक मेथड है कि अगर फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है तब हम लॉरेंट सीरीज आइडेंटिफाई करके और जस्ट नोट द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस z नॉट दैट इज b1. उसका कोफिशिएंट हमें आइडेंटिफाई होते ही वी आर एबल टू राइट द रेसिड्यू. बट इसके अलावा भी हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है विच इज स्पेसिफिकली फॉर द पोल्स. तो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर. फर्स्ट लेट मी मेंशन कि हम अभी तक ट्रेडिशनल कौन सा मेथड यूज करते आए हैं. ठीक है. सो वी what we are doing right now is that when a function f has an isolated singular point at z naught, the basic method for identifying z naught as a pole and finding the residue there is to write the appropriate Lorentz series and to note the coefficient of 1 upon z minus z naught. ठीक है. दिस इज द मेथड जो अभी तक हम सारे लेक्चर्स में करते हुए आए हैं. इस लेक्चर में हम एक अल्टरनेटिव मेथड की तरफ चलेंगे और दैट अल्टरनेटिव मेथड विल बी डिस्कस्ड बाय अ थ्योरम एंड दैट थ्योरम गिव अस a direct use or a direct tool to identify the residue at a pole. Okay, so we are going to discuss an alternative method. Okay, to finding residues at poles. Okay, so for this we will have a theorem and that theorem is quite impressive. This theorem says let z naught be an isolated singular point of a function f, then the following these two statements are true or equivalent, you can say. Two statements are equivalent. The first statement is z naught is a pole of order m, where m could be 1, 2, 3 and so on of f
And the second statement says fz can be written in the form, अगर z नॉट m ऑर्डर का एक पोल है तो fz को हम इस तरीके से लिख सकते हैं that fz is equals to phi z over z minus z naught to the power m, where m is equal to 1, 2 and so on. ठीक है. Now the next information about phi z is where phi z is analytic. This is very important word, analytic, and non-zero. These both are necessary condition. Okay, non-zero at z नॉट. ठीक है. तो जब हम एफ जेड के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और उसके लिए जब हम फाई जेड आइडेंटिफाई करेंगे तो उस फाई जेड के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि हमारा फाई जेड एनालिटिक भी हो और नॉन जीरो भी हो. ठीक है. अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को ट्रू मानेंगे और फिर शो करेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड देन वी विल राइट दी सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू हम फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे. ठीक है. ये तो बात हुई हमारे थ्योरम और उसकी प्रूफ की. अब हम बात कर रहे हैं कि अगर z नॉट एक m ऑर्डर का पोल है तो उस पर हम रेजिड्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट मी इंक्लूड दैट इन विद इन द थ्योरम ओनली. Moreover, if statement 1 and 2 are true, okay, then in that case we can find residue at z equal to z naught of fz is equal to phi the m minus 1th order derivative of phi over z naught over m minus 1 factorial, and this is for m equals to 1, 2, 3 and so on, and where phi of 0th order derivative at fz naught is nothing but phi of z naught and 0 factorial is nothing but 1. ठीक है. ये अंडरस्टूड है. तब हम हमेशा रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m को हम हमेशा इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल वी नीड इज टू आइडेंटिफाई दी m minus 1 order derivative of this function phi at z naught. ठीक है. This will be a very quiet and efficient way to quite useful and efficient way to identify the residue of the function fz at z equal to z naught. ठीक है. Now we will come to the proof of this statement. So first we will take that A is true, then we will prove B. Okay. So first we are taking that statement first is true. Okay. So we are saying that first implies second. Okay. So let statement 1 is true. ठीक है. Then we shall prove statement second. Okay. For this, क्योंकि हम fz का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं in some deleted neighborhood of z naught. So let fz has the following Laurent series expansion. And what is that? क्योंकि ये nth ऑर्डर का m ऑर्डर का एक पोल है तब हमारे प्रिंसिपल पार्ट में m टर्म्स होंगी तो हम उसे क्या लिख सकते हैं. समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 to infinity an z minus z naught to the power n plus v1 over z minus z naught plus v2 over z minus z naught square plus and so on plus
bm over z minus z naught to the power m, and this is true in some disk, so we are writing this disk. Okay, r2 can be any real number. Okay, अब यहाँ पर ऑब्वियसली दिस बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज हम पोल ऑफ ऑर्डर एम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा वो लार्जेस्ट इंडेक्स एम है जिसके लिए बी एम नॉन जीरो है। इसके बाद के सारे जो कॉफिशेंट्स है वो सभी जीरो है, इसलिए हमारी सीरीज यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब इसी सीरीज के रेफरेंस से वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन, न्यू फंक्शन विच इज फाइव फंक्शन। और फाइव फंक्शन किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। ओके, so we define that phi z function is equal to z minus z naught to the power m time fz when z is not equal to z naught, and this is equals to bm when z is equal to z naught। हमने ऐसा एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अगर ऐसा हम फंक्शन डिफाइन करें, एंड लेट मी कॉल दिस इज सीरीज नंबर 1 एंड दिस इज फंक्शन से 2। ओके, अगर हम फाई जेड को इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम सीरीज 1 से फाई जेड का सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखें तब, सो देन द सीरीज रिप्रेजेंटेशन for phi z is phi z just multiply z minus z naught to the power m throughout the series। ओके, तो अब देखेंगे जब हम bm में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा z minus z naught to the power m मल्टीप्लाई बाई z minus z naught to the power m, तो यहाँ केवल bm मिलेगा। ऐसे इसके सारे कोफिशिएंट तो हम यहाँ प्रिंसिपल पार्ट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन इंटरप्रेट द टर्म्स। सो हमें मिलेगा सबसे पहली टर्म बी एम, देन बी एम माइनस वन, और क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म z माइनस जेड नॉट टू द पावर m से, तो इसके जस्ट जो पहली टर्म्स थी वहाँ पर रहा होगा z माइनस जेड नॉट टू द पावर m माइनस वन, तो हमें यहाँ पर मिलेगा दिस इज z बी एम माइनस वन time z minus z naught, then plus b m minus 2 and z minus z naught to the power 2 plus and so on। Look at the last term, जब हम b1 पे आएंगे, इसमें b1 पे आएंगे तो हमें मिलेगा b1 z minus z naught to the power m minus 1, okay, plus b1 z minus z naught to the power m minus 1, and then plus when we look at this series, then we will have summation and running from 0 to infinity, that coefficient an z minus z naught to the power m plus n. So this is the series representation. Now look at the series. यहाँ पर क्योंकि हमें फाई जेड के बारे में बताना है कि पोल और ये फंक्शन कैसा है, इन सब के बारे में। अब आप ये देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट में हमने प्रूफ करना है कि एफ जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा फाई जेड एनालिटिक और नॉन जीरो है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, सो लेट मी कॉल दिस इज नंबर 3। सो फ्रॉम 2 वी आर हैविंग दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m. This is what we wanted to show. Okay, then from अच्छा, जब भी हम सीरीज लिखेंगे तो उसका रीजन तो हमें लिखना ही पड़ेगा। सो लेट मी डिनोट कि इसका रीजन भी वही है, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल टू जेड नॉट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा z माइनस जेड नॉट ही इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो हमारी सीरीज इसमें वैलिड है। ठीक है, एफ जेड ये हो गया। अब जो हमारा फंक्शन है फ्रॉम 3 वी कैन से फाई जेड इज एनालिटिक। यू कैन सी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पॉजिटिव पावर्स हैं, और ये एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन है एफ जेड का एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। और जब हम किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख पा रहे हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक ही रहा होगा, अदरवाइज हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकते थे। फ्रॉम 3 वी कैन से फाई जेड इज
analytic as 3 is Taylor series for phi z about z नॉट। ओके, तो जिस पॉइंट के अराउंड लिख रहे हैं वहां पर तो हमेशा सीरीज एनालिटिक सीरीज, अगर टेलर सीरीज है तो हमेशा उस पॉइंट पर एनालिटिक ही होगा। ऑल्सो फ्रॉम 3 we can say what is phi of z naught। you can see phi of z naught, जब हम z की जगह z naught पुट करेंगे तो ये सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, केवल हमें bm मिलेगा। और हमारी इस फंक्शन की डेफिनेशन से भी यही था कि जब z इक्वल टू z नॉट होगा तब उसकी वैल्यू bm है, जो हमें इस सीरीज से ही मिल रही है। सो दैट इज इक्वल टू bm। और क्योंकि z नॉट एक m ऑर्डर का पोल था तो bm नॉन जीरो था, तो यहाँ पर हमारे पास है bm इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फाई ऑफ z नॉट, दैट इज फाई ऑफ z नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही हमारे सेकंड स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स थे। ठीक है।